Good morning, my dear students. Today we shall discuss about second lesson of prose, A Fellow Traveler by A.G. Gardner. This lesson is based on famous proverb, live and let others live. जियो और जीने दो. In this lesson, the writer was traveling from London to Midland town by train. When he started his journey, the train was overcrowded. This train was passenger train that stopped at every station. The passengers gradually got down at every station. And at the outer ring of London, writer left alone in his compartment. When he felt that he was alone, he enjoyed the idea of being alone in the compartment. He thought that he was quite free to talk, argue, sing, dance, practice golf stroke, and play marble. He could close or open the window, could sit on any seat or lie on the cushions without any fear of law. And he can break the law of DORA, Defense of Relief Act. The writer did not do any of these things. He lit a cigarette, sat down and began to read his newspaper. Just then a mosquito came and sat on his nose. The author flicked it off. It bent around and came down on the author's neck. He flicked it off again, but it came and sat on the back of author's hand. The author got angry with the mosquito and tried to kill it. He called it a belligerent, आवारा, पब्लिक न्यूसेंस, लोगों को परेशान करने वाला, ट्रेवलर विदाउट टिकट. He attacked him in several ways, but all his attacks failed. The author developed sympathy and fellow feeling for the mosquito. He became merciful for the small creature mosquito. He pardoned, क्षमा किया, and sat on his nose. On the basis of mercy, he had given him a name, A Fellow Traveler. The author became very much friendly to the mosquito. He called the mosquito his fellow traveler and began to think of life and journey like a philosopher. As the author sat lost in his thought, a porter came outside, called out to him. It was author's station. The author came out on the platform, and his journey with his fellow traveler came to an end. He saw that his fellow traveler mosquito was fluttering around the lamp. Hindi translation of this lesson. यह लेसन एजी गार्डनर के द्वारा लिखा गया है और यह लेसन एक महत्वपूर्ण कहावत पर निर्भर करता है, जियो और जीने दो. इस पृथ्वी पर जितने भी छोटे मोटे जीव हैं उन सबको रहने का अधिकार है. हमें यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि हम किसी को मार सकें. इसी तरह से जैसे कि आथर अपने आप को ह्यूमन बीइंग समझ करके मॉस्किटो को छोटा क्रिएचर समझ करके मारने का प्रयास करता है, लेकिन अंत में उसको ये महसूस होता है कि सबको रहने का अधिकार है. इसीलिए यह पूरा लेसन इस कहावत पर निर्भर रहता है. इसकी एक संक्षिप्त
समरी में बता रहा हूँ। लेखक रेलगाड़ी द्वारा लंदन से मिडलैंड के एक नगर में यात्रा कर रहा है और जब वह रेलगाड़ी में प्रवेश करता है तो उस समय ये रेलगाड़ी पूरी तरीके से भरी हुई थी। उसका कंपार्टमेंट यात्रियों से भरा हुआ था और यह ट्रेन पैसेंजर ट्रेन है। पैसेंजर ट्रेन जो हर एक स्टेशन पर रुकती है। धीरे धीरे लोग रेलगाड़ी के डिब्बे से उतरते गए और जैसे उसने लंदन का अंतिम स्टेशन छोड़ा वैसे उस डिब्बे में केवल आथर रह गया, केवल लेखक रह गया, बाकी सब लोग उतर गए। और जैसे सब लोग उतर गए तो आथर के मन में एक विचार आता है कि मैं इस डिब्बे में जो कुछ चाहूँ कर सकता हूँ। चाहे तो मैं नृत्य करूँ, चाहे तो मैं गीत गाऊँ, चाहे तो मैं गोल्फ खेलूँ, चाहे तो मैं किसी को पटक दूँ, चाहे मैं हर खिड़की को खोल कर चलूँ, चाहे सबको बंद करके चलूँ, चाहे एक सीट पे बैठूँ या सीट के ऊपर मैं लेट जाऊँ, मुझको कोई भी टोकने वाला नहीं है। और रेलवे का जो अधिनियम है, एक्ट है, जो रेलवे का अधिनियम है, उसको मैं अगर तोड़ूंगा भी तो मुझको कोई मना नहीं करेगा। हमारे ये जितनी भी रेलगाड़ियां हैं ये DORA, डिफेंस ऑफ रेलवे एक्ट के तहत संचालित होती हैं। अगर हम इसमें किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाते हैं तो हमको फाइन हो जाता है, जुर्माना हो जाता है। लेकिन चूंकि वह अकेले था इसलिए उसने सोचा कि मेरा DORA, डिफेंस ऑफ रेलवे एक्ट भी कुछ नहीं कर सकता है। और लेकिन वह ये सोचता है बल्कि ऐसा कुछ करता नहीं है। वह आकर के बैठ जाता है और अपना पेपर पढ़ने लगता है। उसी समय एक मच्छर आता है और उसकी नाक पर बैठ जाता है। लेखक ने उसे उड़ा दिया। वो चारों ओर उठा और लेखक की गर्दन पर आकर बैठ गया। लेखक ने उसे फिर से उड़ा दिया और उस मच्छर ने पूरे कंपार्टमेंट का भ्रमण किया। उसने देखा कि लेखक के अलावा यहाँ पर कोई भी इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं है, तो वह फिर से आकर के उसके हाथ के पिछले भाग पर बैठ गया। इस बात को लेकर के लेखक को बड़ा क्रोध आता है। उसने उसको मार डालने की बड़ी कोशिश किया। मच्छर को आवारा कहा, जनता को परेशान करने वाला, बिना टिकट का यात्री कहा और इस प्रकार से अनेक प्रकार आक्रमण किए, परंतु उसके सभी आक्रमण फेल हो गए। वो मॉस्किटो मच्छर को कुछ भी नहीं कर पाया, मार नहीं पाया। अंत में उसको यह महसूस हुआ कि मैं अपनी हार को जीत में कैसे बदल सकता हूँ। तो उसके मन में एक सिंपैथी आती है, सहानुभूति आती है, दया आती है और एक अपनत्व की भावना जागती है कि इस पृथ्वी पर सभी लोगों को रहने का अधिकार है और मैं कैसे सुपीरियर हूँ। मैं सुपीरियर नहीं हूँ क्योंकि मैं इस छोटे से मच्छर को मार नहीं पाया, इसलिए मैं किस हेतु मैं सुपीरियर हूँ। अंत में उसके अंदर एक दया का भाव आता है और मच्छर को वो क्षमा करने का प्रयास करता है और अपनी सीट पर आराम से बैठ जाता है। उसके अंदर एक मित्रता की भावना जगती है और उसने उसको एक सहयात्री का नाम दिया। सहयात्री का नाम उसने दिया कि मेरे साथ इसने यात्रा किया इसलिए मेरा फेलो ट्रेवलर है, सहयात्री है। वहीं पर उसने एक चीज़ और मेंशन किया कि इसके पहले जो है सेंट फ्रांसिस ने इनको ब्रदर कहा था, मच्छर को ब्रदर कहा था, लिटिल ब्रदर कहा था। लेकिन चूंकि क्रिश्चियन बहुत ही सिंपैथेटिक होते हैं, सिविल होते हैं, इसलिए मैं उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ूंगा, लेकिन इसको भी मैं अपना एक नाम दे रहा हूँ और वह नाम दे रहा हूँ सहयात्री का। अंत में लेखक के मन में मच्छर के प्रति मित्रता की भावना जागती है। उसने मच्छर को अपना सहयात्री कहा और जीवन और यात्रा के बारे में एक दार्शनिक की भांति सोचने लगा। जब वह अपने विचारों में खोया हुआ था, बैठा हुआ था, तो बाहर से एक पोर्टर कुली ने उसको आवाज़ दिया कि श्रीमान जी आपका स्टेशन आ चुका है। और वह प्लेटफार्म पर बाहर निकल आता है और वो देखता है कि उसका जो सहयात्री है मच्छर, वह अभी भी लैंप के चारों तरफ
लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ा रहा है, उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, जबकि उसकी लेखक की यात्रा समाप्त हो गई है। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.